Welcome to Virtual Learning Network, Indian Economics, Session 13, Role of Foreign Trade in India. Topics to be covered include Introduction, Role of Foreign Trade in Economic Growth, Analysis of Growth in India's Foreign Trade, Volume of India's Foreign Trade, Trade Deficits and Terms of Trade, Composition of India's foreign trade, Direction of India's foreign trade. Introduction. Modern day economies are all open economies that every country cultivates and promotes economic relations with the rest of the world. This again underlines the fact that the economic welfare of a country depends as much upon the external environment that a country faces upon domestic policy changes. जो मॉडर्न डे इकोनॉमीज हैं बेसिकली ये ओपन इकोनॉमीज हैं. इसमें हर कंट्री अपने जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं वो बढ़ा सकती है दूसरी कंट्रीज से. इकोनॉमिक आइसोलेशन और सेल्फ सफिशिएंसी है हर चीज में. ग्लोबल डिवीजन ऑफ लेबर जो रूल था वो नहीं है. एक ऑनगोइंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन है जहां पे वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज बनता जा रहा है. ये अगेन इस फैक्ट पे डिपेंड करता है कि जो इकोनॉमिक वेलफेयर है कंट्री की वो डिपेंड करती है एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की जो एक कंट्री फेस करता है डोमेस्टिक पॉलिसी चेंजेस में. जो एक्सटर्नल फैक्टर का दूसरा कंपोनेंट है वो फॉरेन ट्रेड है. रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड इन इकोनॉमिक ग्रोथ. Foreign trade has worked as an engine of the growth in the past. Witness Great Britain in the 19th century and Japan in the 20th century, beside others. And even in more recent times, the outward-oriented growth strategy adopted by the newly industrializing economies of Asia. Foreign trade एक ग्रोथ इंजन की तरह काम कर रहा है पिछले बहुत सालों से और एक आउटवर्ड ओरिएंटेड ग्रोथ स्ट्रेटजी बन चुका है. बहुत सारी इंडस्ट्रियलाइजिंग इकोनॉमीज जैसे एशिया में हुए हांगकांग, सिंगापुर, ताइवान, साउथ कोरिया. Contribution to growth. Foreign trade contributes to economic development in a number of ways. Foreign trade है वो economic development में contribute करता है. Foreign trade explores means of producing imports of capital goods without which no process of development can start. Foreign trade explore करता है import करता है capital goods. Secondly, it provides for free flow of technology which allows for increases in total factor productivity and some short run multiplier effects for countries which unemployed labor. दूसरा एक फ्री फ्लो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है जिससे फैक्टर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है जो शॉर्ट रन मल्टीप्लायर इफेक्ट्स हैं कंट्रीज में. थर्डली फॉरेन ट्रेड. नाउ बैरियर्स टू ट्रेड. कुछ लिमिटेशंस हैं ट्रेड से. The demand for primary commodities which form the principal exports of a developing economy has not kept pace with the growth of world trade or with income levels in different countries. Exports of developing economies as a group has been slow to develop. The declining demand for primary products has developed market has given rise to the problem of worsening terms of trade of the developing economies. Restrictive trade policies adopted by industrialized countries affect prospects for developing country exports of the manufacturers.
फॉरेन ट्रेड में बेसिकली एक मैनिफोल्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस ये हैं ग्रोथ के टुवर्ड्स। जो नॉन ऑयल प्रोड्यूसिंग डेवलपिंग कंट्रीज हैं जैसे कि इंडिया है, उसने बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस किए हैं फॉरेन ट्रेड में। पहला, जो डिमांड था प्राइमरी कमोडिटीज का, जो बेसिक फॉर्म कर रहा था प्रिंसिपल एक्सपोर्ट्स का, उसमें एक कोई भी पेस नहीं था वर्ल्ड ट्रेड में। वर्ल्ड ट्रेड में जो प्राइमरी कमोडिटीज थी वो डिक्लाइन हो रही थी 4.5 डेकेड से। प्राइमरी कमोडिटीज मोर देन 50% टोटल एक्सपोर्ट फॉर्मेशन था, उनका शेयर था। सेकेंडली, जो एक्सपोर्ट्स था डेवलपिंग इकोनॉमी का एज अ ग्रुप वो बहुत स्लो हो गया था। थर्डली, जो डिमांड थी प्राइमरी प्रोडक्ट्स की डेवलप्ड मार्केट में वो राइज हुई थी। फाइनली, जो रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज जो अडॉप्ट की गई थी इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज के थ्रू, उन्होंने डेवलपिंग कंट्री के एक्सपोर्ट्स जो मैन्युफैक्चरर्स थे उनको इफेक्ट किया। इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज ने फेस की बहुत सारी प्रॉब्लम्स ग्लोबलाइजेशन के दौरान। ट्रेड पॉलिसी, द टर्म ट्रेड पॉलिसी refers to all the policies that have either direct or indirect bearing on the trade behavior of a country। जो ट्रेड पॉलिसी है बेसिकली उसका मतलब है जितनी भी पॉलिसीज जिनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जिनकी इम्पैक्ट है किसी भी ट्रेड बिहेवियर किसी भी कंट्री का। ट्रेड पॉलिसीज में सारी पॉलिसीज आती हैं जो एक कंट्री की ट्रेड पॉलिसीज को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट करती हैं। डिटेल्स होती हैं बहुत सारी ट्रेड पॉलिसीज की जो डिपेंड करती हैं ब्रॉड ट्रेड स्ट्रैटेजी पे जो किसी भी कंट्री ने अडॉप्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी है कि किसी भी इंडस्ट्री की डेवलपमेंट को ज्यादा एम्फेसिस देना है ना कि एग्रीकल्चर को, तब जो ट्रेड स्ट्रेटेजी होगी वो अडॉप्ट की जाएगी जो सूट करेगी। Two broad types of trade strategy discussed in the literature are the following: inward oriented strategy, outward oriented strategy। दो ब्रॉड स्ट्रैटेजीज ट्रेड स्ट्रैटेजीज जो डिस्कस की गई हैं वो है इनवर्ड और आउटवर्ड ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी। इनवर्ड ओरिएंटेड जो स्ट्रैटेजी है वो आइडेंटिफाई की जाती है प्रोटेक्शनिज्म और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में, और आउटवर्ड ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी फ्री ट्रेड और एक्सपोर्ट प्रमोशन में। Effect of these two types of strategy on growth of output, employment, income generation and income inequalities could also be of diverse nature, and no general inference can be drawn in this context. Analysis of the growth of India's foreign trade. A proper analysis of a country's foreign trade can be attempted in 3 component parts. पहला है वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड रिलेट करता है किसी भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के साइज को। अगर बहुत ज्यादा कमोडिटीज एंटर कर रही हैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में तो उनकी वैल्यू मनी वैल्यू भी बहुत ज्यादा होगी और जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड होगा वो भी ज्यादा होगा। जो ट्रेंड्स होते हैं किसी भी वैल्यू ऑफ ट्रेड में वो आइडेंटिफाई करते हैं बेसिक फोर्सेस जो हेल्प करते हैं ऑपरेट करने में अलग अलग टाइम पीरियड में। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बताता है कि कितना शेयर होगा इंपोर्ट में, एक्सपोर्ट में और जीडीपी में। कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रेड। कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रेड एक इंडिकेटिव फैक्टर है जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट बताता है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ ग्रेड में जैसे कि कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रेड में जैसे कि क्या डिग्री है कॉन्सेंट्रेशन की जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कॉम्पोजिशन हो रहा हो डिसाइड हुआ हो। कोई शिफ्ट है क्या प्राइमरी प्रोडक्ट्स और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स में। क्या कमोडिटीज हैं जो एंटर कर रही हैं ट्रेड में जो सेटिस्फाइड करती हैं दूसरे
किसी भी रिस्पेक्ट में, चाहे आउटपुट के रिस्पेक्ट में, चाहे प्रोडक्टिविटी लेबर के रिस्पेक्ट में, चाहे कैपिटल इंटेंसिटी इन प्रोडक्शन के रिस्पेक्ट में। लास्ट है डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। जो डायरेक्शन ऑफ ट्रेड है वो एक इंडिकेटिव फैक्टर है। जैसे कि कंट्री डेवलप होती है उसका ट्रेड डाइवर्सिफाई होता है और न्यू आउटलेट्स तैयार किए जाते हैं एक्सपोर्ट्स के लिए। जो हॉरिजन ऑफ चॉइस होती है एक्सपोर्ट्स के टर्म में वो वाइडन हो जाती है। वॉल्यूम ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। As provided in our development plans, the volume of merchandise trade has been on the price trade to GDP ratio has gone up from about 8% in 1950 to about 20% presently. जो GDP ratio है वो 8% 1950 से currently 20% तक rise हो चुका है। Value of exports. Exports की जो value है वो इस तरह से है, पहले उसका कंपैरिजन हुआ है नेट नेशनल प्रोडक्ट से और फिर कंपैरिजन हुआ है वर्ल्ड के एक्सपोर्ट से। कॉजेज ऑफ स्लो ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट। क्या रीजंस हैं जो एक्सपोर्ट्स हैं वो उनका जो ग्रोथ रेट है इंडिया में बहुत स्लो है। पहला है कि India's exports has suffered due to a shortage of supplies and inadequate exportable surplus. इंडिया के पास इतना सरप्लस क्वांटिटी ही नहीं है कि वो सप्लाई कर सके कुछ, इसलिए एक्सपोर्ट का जो रेट है वो बहुत कम है। सेकेंड इज among the fastest growing export products have been the new technology goods such as goods from about half of the total world trade in 1980 and a decade and a half later these constitute more than 2/3. सेकेंड रीजन है कि टेक्नोलॉजी जो गुड्स हैं उनकी एक्सपोर्ट इतनी नहीं है। थर्ड इज इंटीमेटली लिंक्ड विद द प्रॉब्लम ऑफ एक्सपोर्टेबल सरप्लस इज द प्रॉब्लम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल की प्रॉब्लम है। अगर क्वालिटी कस्टमर प्रेफरेंस को सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो एक हायर प्राइस पे वो प्रोडक्ट एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में सोल्ड नहीं हो सकता है। और इंडिया ने अपनी एक इमेज एक एज अ सप्लायर ऑफ गुड क्वालिटी गुड्स नहीं स्टेब्लिश की है। वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स। India's total import have increased more than 250-fold during the last 4.5 decades from rupees 608 crore in 1950-51 to rupees 1,76,099 crore in 1998 to 1999। इंडिया का जो टोटल इंपोर्ट है वो इंक्रीज हुआ है 250 फोल्ड मीन्स 608 करोड़ से 1,76 करोड़ तक। The government import policy since 1950-51 has fallen into two distinct phases। और जो गवर्नमेंट की इंपोर्ट पॉलिसी है दो फेजेस में डिवाइड है। पहला फेज है जो 1957 तक एक्सटेंड है जिसमें फर्स्ट 5 ईयर प्लान है और दूसरा जो है वो 1957 से 58 तक है। इसको डेवलपमेंट स्ट्रेटजी टाइम भी कहा गया है। ट्रेड डेफिसिट्स एंड टर्म्स ऑफ ट्रेड। Except during the 1972 and 73 and in 1976 to 77, India's imports have exceeded their exports. The size of trade deficit has been continuously increasing. 1972 1976 के अगर कंपेयर किया जाए तो जो इंडिया का एक्सपोर्ट है वो उसके एक्सपोर्ट से ज़्यादा है और ट्रेड डेफिसिट इसी वजह से बढ़ता जा रहा है। Over the period 1980-81 and 1990-91, the net barter terms of trade improved by 30%. हालांकि जो नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो इम्प्रूव है 30% से। कॉम्पोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट्स।
It would be observed from the relative share of agriculture and allied products in total exports is on the decline and the relative share of the manufactured goods is on the rise. अगर हम एग्रीकल्चर और एलाइड प्रोडक्ट्स को देखें तो 1960 और 61 में जो एक्सपोर्ट का शेयर था इंडिया का वो 284 था और 1999 में 5,996 हो गया. टोटल देखें तो पहले 642 था 1960-61 में और 1998-99 में 33,659. For more penetrating analysis, we can classify the various exports in three groups. Exports को हम तीन तरीके से तीन ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं. पहला है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चर्स. इसमें वो इंडस्ट्रीज आती हैं जो सिग्निफिकेंटली एक्सपोर्ट डिपेंडेंट होती हैं. इंपोर्ट, इंडिया का जो इंपोर्ट है उसमें तीन पार्ट में है वो. पहला है कंज्यूमर गुड्स, रॉ मटेरियल्स, इंटरमीडिएट्स और कैपिटल गुड्स. और जो इंपोर्ट्स है कंज्यूमर गुड्स का वो टोटली रिस्ट्रिक्टेड है और परमिटेड है सिर्फ डोमेस्टिक शॉर्टेज के लिए. डोमेस्टिक ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरर्स में एक्सपोर्ट होती है उन इंडस्ट्रीज के थ्रू जो डोमेस्टिक नीड्स को कैटर करते हैं. और थर्ड इज नॉन मैन्युफैक्चरर्स प्रोडक्ट्स विच आर ऑफ नेचुरल और एग्रीकल्चर सेक्टर. उन प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट की जाती हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर से या नेचुरल सेक्टर से बिलोंग करती हैं. जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चर का जो शेयर है वो 53% है. डोमेस्टिक ओरिएंटेड मैन्युफैक्चर का जो शेयर है वो 12% है और नॉन मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स का जो शेयर है टोटल एक्सपोर्ट्स में वो 35% है. Composition of imports. Import, as already seen above, have been largely governed by the import trade control policy of the government. India's import can be classified into three parts. इंडिया का जो import है तीन पार्ट में क्लासीफाई हो सकता है जैसे मैंने बताया, कंज्यूमर गुड्स, रॉ मटेरियल्स, इंटरमीडिएट्स और कैपिटल गुड्स. Maintenance imports include four different categories of imports. Raw material and components required for operating existing industrial and allied capacity at their present level. Addition to these capacities, which may be expected to take place over a specified period. Intermediate products such as crude petroleum required for the production of various petroleum products. Import maintenance 4 categories में divide होता है. Intermediate products में crude petroleum ये सब include है. Diversification और concentration. 9 countries, that is the UK, Germany and then USSR, Japan, Iraq, Iran, Australia and Canada have a lion's share ranging between 51 to 62% of our exports and 56 to 75% of imports during the 3 decades from 1951-52 to 1979-80. जो 9 countries हैं उनका शेयर है इंपोर्ट्स में इस तरह 51 to 62%. ये क्लियर है कि जो इंडिया का फॉरेन ट्रेड है वो डाइवर्सिफाइड नहीं है. इंडिया शुड एस्टैब्लिश मार्केट अरेंजमेंट with these countries, getting raw materials from them and in turn supplying them finished goods. इंडिया को कुछ ऐसे एस्टेब्लिशमेंट्स अरेंजमेंट्स करने चाहिए जिसके थ्रू वो इन कंट्रीज से कुछ रॉ मटेरियल्स ऑब्टेन कर सके और इन एक्सचेंज उनको फिनिश प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर सके. Now we have certain questions to it yourself. First is explain role of foreign trade in economic growth. Second is discuss about trade deficits and terms of trade.
That's all for this session. Thank you.